Good morning, students. Today we are going to study the third unit of our English grammar, that is pronouns and kinds of pronouns. Okay, it is given on page number 12 in your book. So, what are pronouns? We all have studied pronouns since we were kids. So, what are pronouns? Pronouns are those words that are used in place of nouns while speaking or writing. And why are pronouns used? We can simply use nouns when we say pronouns are used in place of nouns, then we can use nouns also, right? Why do we need to use pronouns then? We need to use pronouns because what happens that when we use nouns, when we repeat nouns in a sentence or in a paragraph, it does not sound nice and it is not grammatically correct. That is why we use pronouns in place of nouns. For example, look at the following passage. Look at the passage that is given on page number 12, the very first passage. Samira said Samira had lost Samira's bag in the park. This is the very first sentence. Okay. थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? बार बार समीरा समीरा समीरा. What will we do? We will use pronoun instead of the noun, that is Samira. Okay, we will write it. Samira said that she lost her bag in the park. Now the sentence sounds much better. ठीक है? This is the use of pronouns. ठीक है? And words that are used in place of nouns are called pronouns. This is the definition of pronoun. Okay, this much I hope it is clear. Now we'll read the important part that is given on page number 12 at last. All the underlined words have been used in place of nouns. Now what are these underlined words? For that we need to read the passage just above it. Look at Lalita, she is dancing. Alia and Sujata have come to see her. They are glad to see her dancing. She is also happy as them. ठीक है? तो all the underlined words. What are the underlined words? She, her, they, her, she, them. ठीक है? In the first sentence it is she. In the second sentence it is her. In the third sentence it is they and her. And in the last sentence it is she and them. All these underlined words are used in place of nouns. ठीक है? A pronoun has the same position as a noun in the sentence. A pronoun noun की जगह use हो रहा है, तो pronoun के same functions and same जो position है जहाँ पे noun use कर रहे थे हम, वहाँ पे pronoun use करेंगे. ठीक है? This is the first point. The second point is, like a noun, a pronoun is also a subject of a sentence and may have a direct or an indirect object in a sentence. मतलब जैसे नाउन हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म पे यूज होता है, इट इज़ नॉट हमेशा, बट हमेशा ही सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है सेंटेंस का. ठीक है? तो लेकिन एक सेंटेंस में मोर देन वन नाउन हो सकते हैं एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द नाउन्स विल बी द सब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट नाउन्स की जगह हम प्रोनाउंस को भी सब्जेक्ट के फॉर्म पे ही यूज करते हैं सेंटेंस के. फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग. ठीक है? तो अब क्या है इसमें, शी इज द प्रोनाउन एंड इट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट. क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट इज द वर्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बोला जा रहा है सेंटेंस में. ठीक है? दैट इज द सब्जेक्ट. तो इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? शी के बारे में. ठीक है? शी इज अ गर्ल. ठीक, तो शी के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे शी प्रोनाउन तो है ही, साथ साथ सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का. लाइक अ नाउन, अ प्रोनाउन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. अब जैसे नाउन किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वैसे प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है? एग्जाम्पल, शी इज ऑल्सो एज हैप्पी एज देम, दे आर ग्लैड टू सी हर. ठीक है? तो इसमें शी इज ऑल्सो हैप्पी, she is also as happy as them. मतलब as them is the object here. Okay, and it is used in place of a noun, so it is a pronoun and an object. They are glad to see her. ठीक है? तो her is the object here and it is used in place of a noun. It is a pronoun and it is also an object. The fourth point is,
Like a noun, the pronoun should also agree with verb in a sentence. अब हमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन है तो दोनों नाउन एंड प्रोनाउन वर्ब के साथ एग्री करके या वर्ब के साथ पैरेलली सेंटेंस में रन करेंगे। वर्ब जो हमारा वर्ब है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज होगा। अब सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है तो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज अ प्रोनाउन ऑल्सो हैज अ नंबर। प्रोनाउन जैसे नाउन का नंबर होता है, जैसे नंबर और जेंडर हम लोग पढ़ते हैं, नंबर मीन सिंगुलर एंड प्लूरल, वैसे ही प्रोनाउन का भी नंबर होता है। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं एंड वी, यू, दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं। अ प्रोनाउन ऑल्सो हैज अ जेंडर, ठीक है। जैसे नाउन का जेंडर होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर, वैसे ही प्रोनाउन का भी जेंडर होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर, ठीक है। नाउ वील सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं हमारे 7 काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ है इंडेफिनिट, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, सिक्स्थ इंटरोगेटिव एंड सेवेंथ रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे इन प्रोनाउंस के नाम हैं उसी तरह से इनका यूज भी है, ठीक है। जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वैसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है, पर्सनल, पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है हमारा, अ पर्सन, द प्रोनाउन which refer to the person or persons speaking are called pronouns of first person या first person pronouns, ठीक है। as, I, we, me, us, mine, मतलब जो सेंटेंस में जो बात कर रहा है that is the first person। इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, I, we, me, us, mine, ours, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, वो होता है सेकंड पर्सन। इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, एज, दाउ, दी, यू, योर्स, दाउ मतलब ही होता है यू, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक। अब सपोज मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आई एंड शी आर टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। या फिर चलो यही सेंटेंस ले लेते हैं, आई एंड शी आर टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। अब ये आई इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मैं बोल रही हूं इसलिए आई इज द फर्स्ट पर्सन, एंड शी मतलब मेरे साथ कौन बात कर रहा है, आई एम स्पीकिंग टू हुम, शी, ठीक है। आई एंड शी, यहाँ पे शी हो गया हमारा सेकेंड पर्सन, आर टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। तो हिम कौन है, जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो हिम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज किया हुआ है, वो उसका पीडीएफ मैं आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग अपनी बुक्स फिल कर लीजिएगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट वर्ड से आता है एंड एम्फसाइजिंग एम्फसाइज वर्ड से आता है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम लोग जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ए ब्लॉक के 2 सेंटेंसेस एंड बी ब्लॉक के 2 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए ब्लॉक का फर्स्ट सेंटेंस है, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, वी ऑफन टॉक टू आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये जो माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इटसेल्फ, ये सारे होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। दोनों सेम, मतलब वर्ड्स जो हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब तो हम लोग सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये सब इन सब के साथ कभी सेल्व्स नहीं होता है। इसके अलावा योर सेल्फ एक ऐसा वर्ड है, सॉरी नॉट योर सेल्फ, इट इज इट सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, ये 4 ऐसे होते हैं जिसके साथ हम लोग कभी भी, क्योंकि ये सब जो है सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज हो रहे होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी, या फिर आप कह सकते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें कभी भी योर सेल्व्स, इट सेल्व्स, माई सेल्व्स, हर सेल्व्स नहीं बनाते हैं। इट इज ऑलवेज SELF, सेल्फ तक ही रहता है। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्व्स। ठीक है, इसमें जो हमारा जो ए ब्लॉक है उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां पढ़ रही हूं मैं, आप लोग देखिए। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, her self, themselves, itself, in sentences grouped under A. Behave like objects to the verbs. अब देखिए, objects to the verbs मतलब क्या होता है? I blame myself for it. Whom do I blame for it? मैं किसको blame कर रही हूँ? Myself. The answer is myself. ठीक है? We often talk to ourselves. Whom do we often talk to? मतलब talk यहाँ पे verb है ना, तो whom do we often talk to? The answer is ourselves. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, दे आर ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब्स एंड दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब ग्रुप बी के अंडर सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आई माई सेल्फ वॉज देयर, वी आर सेल्व्स सर्व्ड द गेस्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? एम्फसाइज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफ आई आस्क हु वॉज देयर, ठीक है, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके लिए मैं क्वेश्चन बना रही, आई माई सेल्फ वॉज देयर, हु वॉज देयर। अब यहाँ पे आई तो आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ माई सेल्फ ही बोलेंगे नहीं, आंसर क्या होगा? आई माई सेल्फ। ठीक है, आई माई सेल्फ वॉज देयर, हु वॉज देयर? आई माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स आई और माई सेल्फ दोनों प्रोनाउंस हमारे आंसर है। ठीक है, ये होते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। एम्फसाइज करना मतलब जोर देना किसी चीज पे जोर दे के बात करना। ठीक है, एम्फसाइज करना उसको। द सेकेंड सेंटेंस इज वी आवरसेल्व्स सर्व्ड द गेस्ट्स। तो यहाँ पे फिर वर्ब पे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पुट अप करते हैं, हु सर्व्ड द गेस्ट्स? वी आवरसेल्व्स। सिर्फ वी भी नहीं होगा, सिर्फ आवरसेल्व्स भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर? वी आवरसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रोनाउंस वी और आवरसेल्व्स दोनों प्रोनाउंस जो हैं ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस है। यही डिफरेंस होता है, ऐसे ही आप लोग पता करिएगा जहां भी जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में जहां मैंने क्वेश्चन पुट अप किया था वहां पे आप देखिए दोनों आई और माई सेल्फ दोनों आता है कि नहीं आंसर में। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, ये सेंटेंस था ना ए का फर्स्ट सेंटेंस, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। अब इसमें देखिए whom do I blame for it? I myself दोनों आंसर है नहीं ना, I myself दोनों वर्ड यहाँ पे आंसर नहीं है। whom do I blame for it, यहाँ पे आंसर सिर्फ myself है, यहाँ पे हम लोग I myself नहीं बोल सकते। तो यही डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्ट करके आना मतलब वापस घूम के बात अपने पे ही आ जाना, या फिर वापस घूम के कोई चीज आ जाना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन सेंटेंसेस में आई का रिफ्लेक्शन जो है माई सेल्फ वर्ड से हो रहा है। इतना अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग सिंपली ये देखिए कि जिसमें आंसर सिर्फ माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स होगा क्वेश्चन पुट अप करने पे, वो होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और जिन पे आंसर आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ ऐसे आंसर्स आएंगे, वो होंगे हमारे एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसमें भी नीचे जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने कर रखे हैं, उसका PDF आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग बुक पे लिख लीजिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस ना, तो थोड़ा आप लोग टाइम दे के समझिएगा तो आप लोग के लिए आसान होगा। विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोनाउंस in our next video, the fourth, fifth, 6th and 7th part of pronouns. ठीक है, आज हम लोग demonstrative pronouns तक ही पढ़ेंगे।
सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? देयर आर 5 वर्ड्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। ठीक है, ये सिर्फ 5 वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के, इसके अलावा और कोई वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फॉर्म पे नहीं यूज होता है। अब दो चीजें हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस में कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सेंटेंस में, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? क्योंकि जहां भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आएगा ना, यही 5 वर्ड आएंगे हमेशा, दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ठीक है, यही 5 वर्ड हमेशा आएंगे। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? अब प्रोनाउन जो है वो होता है यूज नाउन की जगह, यही हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन में पढ़ा ना कि प्रोनाउन्स आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो जब प्रोनाउन नाउन की जगह यूज हो रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, की विशेषता बता रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी H में जहां पे लिखा है एग्जामिन द वर्ड्स प्रिंटेड इन थिक टाइप विद इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ये हम लोग देखते हैं जो पिंक में है। ठीक है, दिस इज माई पेंसिल। अब दिस के बाद तुरंत से नाउन तो आया नहीं है, तो दिस जो है ये होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस पेंसिल इज माइन, अब दिस के बाद तुरंत से पेंसिल आ गया एंड पेंसिल इज अ नाउन, तो यहाँ पे दिस हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज दैट इज माई बुक। ठीक है, दैट के बाद इंस्टेंटली कोई नाउन तो है नहीं, तो इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बुक इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे दैट के बाद तुरंत से क्या आया है? बुक आया है। ठीक है, तो बुक जो है नाउन है, इसीलिए दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इतना डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइजेस मैंने कर ली हैं, मतलब बुक में मैंने करके रखा है, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बाद में PDF जो भेजूंगी उससे आप लोग देख के कर लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा एक्सरसाइजेस। ठीक है, जितना मैंने समझाया बस उसी से रिलेटेड पेज नंबर 15 तक की ही एक्सरसाइजेस आप लोग अभी करिएगा। ठीक है, इसके आगे का हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत हो इतने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जिस दिन क्वेश्चन आवर होगा उस दिन आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।